Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to all of you. Very good afternoon. So last lecture we had slight of an issue, so I think we had to terminate when we were doing some part of the synopsis, isn't it? So let's start with MCQs today. Is that fine? So I'll mix it up a little. I'll do MCQs and then maybe I'll go back to the theory part. We'll do both ends a little by little, so that way you will be, benefited with both. So as you know that this is a very big chapter because EMI and alternating currents are but the easiest of them all. They're very easy. They are not at all difficult. So I'm sure that you can absolutely do this. So we are at lecture number 2 of EMI. And once I finish with this, then we can take a mix kind of questions, which will also apparently help you. So mix लेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पर exactly problem हो रहा है. Okay. Okay, so shall I start, everyone? Okay. So starting off with the first three questions, which are very simple. So the first part is Faraday's and Lenz's law. So I'm giving you 1 minute to think on these three questions. Yeah, Palak is the first one to answer. Yes, so everyone is answering question number 2. That is, Lenz's law is the consequence of the law of conservation of energy. Everything here is in terms of the energy. So absolutely the right answer is energy. Very good. Read the next question. The magnetic flux through a circuit of resistance R. Yes, good afternoon, Mihir. Changes by an amount of delta phi in time delta t. Then the quantity of electric charge which passing through it is. So I can see many of you all answering in the chat box. Very good. So we are aware that E is nothing but d phi by dt, right? So what is EI into R, which is equal to d phi by dt? What is I? I is nothing but dq upon dt into R, right, is equal to d phi by dt. So your dt will get cancelled. So they're asking you what is dq, and that is nothing but d phi upon R. So you have to search for something which is related to that. So I hope you all got that answer. Yeah, majority of you have written the correct answer. Very good. So I'm sure that all of you came to the answer D, right? So I hope you got that answer. Okay. Now, question number 5. A cylindrical bar magnet is kept along the axis. Cylindrical bar magnet is kept along the axis of a circular coil. We have discussed this last time, if you remember. हमने ये बात डिस्कस किया था कि अगर हम उस मैग्नेट को रोटेट करेंगे, अगर उस मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो क्या कुछ होगा? Is anything possible? नहीं होगा. That means answer here is strictly option B. No current will be induced in the coil क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा. याद है लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बात की थी. So obviously flux will not change. Very good. Can I move forward? Okay.
Let's try these three. 1 minute time. Okay, so the first one, which says the metallic ring is attached with the wall of a room. So the ring is attached to the wall. When the north pole of a magnet, basically they're trying to say कि ring जो है वो stationary है. Because Lenz's law में ऐसा होता है कि ring stationary होगा तो magnet को move करना है, या magnet stationary होगा तो ring को move करना है. मतलब there has to be some sort of a relative motion, right? So a metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near it, the induced current in the ring will be. This is a very very simple question. ज्यादा complicate इसको करना ही नहीं है. जब north आ रहा है तो क्या होता है? जब north आ रहा है, it's a simple Lenz's law concept. So what is the direction of current over here? Obviously north बनेगा. North बनेगा तो हम उसको क्या कहते हैं? It will be nothing but anti-clockwise direction. So answer should have been C. Yes, north बनकर repel करेगा. Yes, very good. Next question. There is a coil which is having an area that is equal to A naught, and it is placed in the magnetic field. It is placed in the magnetic field with which changes from B naught to 4 B naught. मतलब there is a change, कुछ तो change होना चाहिए, right? So what is the EMF in the coil? So as you're aware, E is equal to, just a minute, I'm just having trouble with my, so E is nothing but equal to d phi upon dt, right? Now what happens? E is equal to minus d phi by dt. So phi is equal to bar. So A will remain as it is, and the change will be 4 B naught minus B naught, that is 3 B naught upon dt, right? So finally, if you take the negative sign, it is actually negative. So it should be minus 3 A naught B naught. A naught is given to you, B naught upon dt, right? So if they are, and dt has been given to you as t here. So it should be answer A. A milna chahiye. Yes, Aryan, correct. So let's move on to the next one. The next one says the current flowing in the two coaxial coils are in the same direction. Coaxial ka samajhta hai, right? So there are two coils which are coaxial and the direction is in the same direction. On increasing the distance between the two, उसने distance बढ़ा दिया दोनों का. So then what will be the current? क्या लग रहा है आपको? So अगर आपको इसको विजुअलाइज करना है, यू कैन इवन थिंक लाइक से फॉर एग्जांपल एक कॉइल यहाँ है और पहले दोनों नजदीक थे, फिर हमने दूसरा कॉइल यहाँ थोड़ा डिस्टेंस पे रखा. तुम यहाँ खड़े हो, मतलब द ऑब्जर्वर इज हियर, राइट? अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और उसको दिख रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है,
something is wrong with my pen today. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो what will happen? So induce current in both the coils. What will happen? आप सोचो कि अगर से फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आपके साइड में साउथ है, इसके पीछे नॉर्थ होगा, राइट? फिर उसके पीछे क्या होगा? सो ऑब्जर्वर के केस में जब ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उसको क्या दिखना चाहिए? Okay, I can see a lot of answers here. See, जब हम उसको दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने अंदर क्या करेगा? इट विल ट्राई टू डिक्रीज और इट विल ट्राई टू इंक्रीज, बिकॉज आप उसको सेपरेट कर रहे हो। तो उसके अंदर का फ्लक्स जो है आप कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अपने अंदर क्या करने की कोशिश करेगा? वो करंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन वी आर सेइंग कि हम ईएमआई का कंसेप्ट कैसा है कि अपोजिशन होता है, अगर आप उसको सेपरेट कर रहे हो, आप उसका डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो वो फ्लक्स जो है कम होने लगेगा, और जब कम होगा तो ये क्या करेगा? कॉइल अपने अंदर फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश में ईएमएफ बढ़ाएगा और करंट को भी बढ़ा देगा। इसलिए आंसर यहाँ था ऑप्शन ए। सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए। कैन आई प्रोसीड? Okay, let's come to the next set. It says a copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet while it is passing through the ring is. I think when I was teaching this subject, I must have, told you about it because it's quite important thing. I can see majority answering correctly. Yeah, so correct. Very few are answering it wrong, but if this is your coil and if this is the magnet, let's say south is coming, okay? So if south comes, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ south बनेगा और वो क्या करने की कोशिश करेगा? रिपेल करने की कोशिश करेगा। फिर भी मैग्नेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? Will the magnet fall? Will the magnet fall? Yes. Though we are facing a force of repulsion, though we are seeing there is a force of repulsion, still mg तो होने ही वाला है ना? Still mg तो होने ही वाला है। इसका मतलब है the net force, I think I must have given this to you. It is mg minus fr, right? One is going नीचे की तरफ, but mg is obviously greater. So mg minus fr. And what is the net force? Mass into acceleration is mg minus fr. इसका मतलब है A is equal to क्या मिलेगा? G minus fr upon m. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि A is equal to क्या मिल रहा है आपको? G minus something. इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन G से कम है by fr by m. That's why the answer over here is option B. Clear? Okay. आप कैसे भी इसको नीचे भी कंसिडर करके आपको सेम ही मिलने वाला है। A square coil is there which is 10 to the power minus 2
there's a square coil which is 10 to the power minus 2. Area है which is placed perpendicular to a uniform magnetic field of intensity. So area दिया हुआ है and B दिया हुआ है. In other words, bar दिया हुआ है. B into A दिया हुआ है. So I think this is very simple. You don't need my help for this. What's the answer? Flux is equal to bar. Phi is equal to B into A. Yes, it has to be 10 Weber. I hope everyone got. Okay. The next question says a magnet is brought towards a coil fast में, speedily, and slowly in the slowly अगर होगा तो what is the induced EMF and the induced charge? मुझे बताओ इसमें से कौन सा चीज इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड चार्ज में कौन सा चीज मोशन पे डिपेंड नहीं करता? दैट इज द फर्स्ट थिंग वे यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट. देयर इज वन थिंग इन बोथ द केसेस. देखो दो चीजें पूछी गई है कि मैग्नेट को बहुत तेजी से कॉइल की तरफ लाया जा रहा है. अगर मैग्नेट को बहुत तेजी से कॉइल की तरफ लाया जा रहा है, इसमें से एक ऐसी चीज है जो डिपेंडेंसी नहीं है. वेरी गुड पलक, वेरी गुड रौनक. चार्ज, प्रज्ञा, चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है भाई. चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम. डज इट डिपेंड ऑन टाइम? हम स्पीड और स्लो की जब बात कर रहे हैं तो हम टाइम की बात कर रहे हैं. तो क्या चार्ज टाइम पर डिपेंड करता है? नो. चार्ज, इंड्यूस चार्ज हैज नथिंग टू डू विद टाइम. जबकि अगर आप ईएमएफ की बात करें, यस, ई इज इक्वल टू नथिंग बट द लेंसेज लॉ, दैट इज डी फाई बाई डी टी. फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि स्पीडली आप लेके आएंगे तो उसका तो टाइम से लेना देना है ही, बिकॉज ई इज डी फाई बाई डी टी. इसका मतलब है टाइम और ईएमएफ इनवर्स है. तो टाइम अगर फास्ट जा रहा है मतलब टाइम कम है, राइट? फास्ट जा रहा है मतलब टाइम कम है तो ईएमएफ ज्यादा होगा. सो विच ऑप्शन डू यू थिंक? अभी आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? यस, अभी सब लोगों ने सही जवाब दिया. इट इज ऑप्शन बी, मोर इन द फर्स्ट केस. किसकी बात हो रही है? ईएमएफ की बात हो रही है और इक्वल इन बोथ केसेस, दैट मींस चार्ज की बात हो रही है. आई होप यू आर गेटिंग इट. एनी डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड? Can I move ahead? Okay. This is similar to what we did, if you've seen this previously. As shown in the figure, a magnet is moved fast. A magnet is moved fast towards the coil at rest. Due to this induced electromotive force, induced current and induced charge in the coil is E, I, Q, and I. If the speed is doubled, what's the incorrect statement? इसकी डिस्कशन अभी अभी हुई तो गलत जाना ही नहीं चाहिए ना. अभी अभी डिस्कशन हुआ है. यस, द आंसर इज इनकरेक्ट. कौन सा है? क्यू इंक्रीज. तो बाकी तीनों देख लो. ई इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, चार्ज रिमेन सेम. ठीक है, तो बाकी तीन ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट है और हमें पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है. तो हम जानते हैं कि चार्ज और टाइम का कुछ लेना देना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक कॉइल है जिसमें 500 स्क्वायर लूप्स है. मतलब उसने बेसिकली नंबर दिया है, नंबर ऑफ स्क्वायर लूप्स. साइड दे दिया है, मतलब हम एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें निकालना है तो. लेट्स सी. इज प्लेस नॉर्मल
to a magnetic flux which increases at the rate of, मतलब basically they have given us yes, so they've given us the side, so side square से हम area निकाल सकते हैं, dB by dt दिया है हमें, टेस्ला पर सेकेंड मतलब dB by dt है, so हम मॉड से निकाल सकते हैं इसको, n a dB by dt. N a is side square, oh it's one Tesla. So I hope everyone got 5. Aya? So it is placed normal to the magnetic field का मतलब अपना theta 0 है. Theta is 0. Theta is 0. Can I move on? Okay, so let's check this one. 17 question says, when a magnet is pushed in and out of a circular coil connected to a very sensitive galvanometer as shown in the adjoining diagram with a frequency nu, then what will happen? Constant deflection observe होगा galvanometer में. Push in and out मतलब north south करेंगे तो क्या होगा? Second, visible small oscillations will be observed in the galvanometer if the frequency is about 50 hertz. Oscillations in the deflection will be observed clearly if the frequency is 1 or 2 hertz. And no variation in the deflection will be seen if the frequency is 1 or 2 hertz. When a magnet is pushed in and out of a circular coil connected to a very sensitive galvanometer, तो क्या गैल्वेनोमीटर पहले ऑप्शन तो है ही नहीं, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं, बिकॉज देयर बी वेरिएशन. तो आपको पता है कि ए तो नहीं है, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. नाउ लेट्स कम टू द अदर थ्री. Visible small deflections यानी कि small oscillations will be observed in the galvanometer at a frequency of about 50 hertz. Third says the oscillations in the deflection will be observed clearly if it is 1 or 2 hertz. No, they're talking in terms of the frequency now. हम लोग पहले बहुत सिंपल तरीके से टाइम के बारे में बात कर रहे थे. So now you just think about it. And no variation in the deflection will be seen. So D तो है ही नहीं, variation तो दिखेगा ना, तो A और D नहीं है. So we come to B and C. करेक्ट. सी थोड़ा भी अगर हो रहा है तो आप तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, अगर इंड्यूस हो रहा है तो क्या करंट मिल रहा है कि नहीं.
हमने कभी भी लेंसेज लॉ सिखाते टाइम आपको ऐसा बोला कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ही ये ऑब्जर्व होता है? नो, वी डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट. When we are making a generator, we are doing it at 50 hertz. Otherwise, in such cases, in small coils, you will observe even if the frequency is 1 or 2 hertz. Are you understanding what I'm trying to tell you? Because here it's not a generator. We're not yet come to the generator aspect. So here we're just talking about oscillations in the deflection of that galvanometer will be observed even at a very small frequency. And if the frequency is very high, actually the galvanometer may not show much of the difference. Got it, children? I hope this is clear. That's why the answer over here will be option C. Let's come to the area. The area is 100 centimeter square and it has 500 turns. Magnetic field diya hua hai is perpendicular to the coil. And the field is reduced to 0 in 0.1 second. Basically B1 is 0.1, B2 is 0. What is the induced EMF? So E is nothing but N A dB by dt. This is a clear direct calculation. So I'm sure you should get it. 100 centimeter square है, so 100 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा, इसलिए 10 to the power minus 2 है. Weber will be 10 raised to minus 1 upon 10 raised to minus 1. So it's again a very simple one, and I think all of you should get option B as the right answer. So whatever we are doing is related to Faraday's and Lenz's law. A 50 turns circular coil has a radius of 3 centimeters. I'm doing these questions because I feel आप घर पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो. So let's do it anyways. So I have the whole set ready with me. So that's why I'm just doing it. If you feel it is too much, then you please tell me, because I'm trying to do, अगर घर पे नहीं हो रहा है तो at least online हो जाएगा. A 50 turns circular coil has a radius of how much? 3 centimeters. It is kept in a magnetic field acting normal to the area of the coil. The magnetic field is increased from 0.1 Tesla to 0.35 Tesla in 2 milliseconds. What is the average EMF induced? So it's going to be nothing but E is equal to 50 turns. Radius is given to us. So it's going to be pi r square into what's the magnetic field? It is changing from 0.35. So minus 0.1, that is dB, upon 2 into 10 raised to minus 3. इसको calculate करो, answer लेके आओ. How much it will be the answer? Yeah, Palak, it's correct. Yes, Aryan, it's correct. Try करो, सब लोग try करो, because I feel it's everyone should do. So speed भी बढ़ेगा. I mean, there is no loss in anything that you do. Yes, Pradnya. Komal, check your answer. पाई को 3 ले लो ना, ज्यादा ये नहीं है, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं. 3.142 कुछ लेने की जरूरत नहीं है, 3 लेके करो. Done, everybody?
Yes, Aryan, it's correct. So I hope, yes, Komal. So have you got 17.7 volt? Cost तो zero ही होगा. Yes, Trupti. Nandini. Let's come to 20, 21, and 20. So I'm going to give you a minute. I want all the three answers together. अब बहुत हो गया. Let's do time based. Let's do all the three together. Let me see who's the fastest to give me all the three answers. साथ में देना है, एक एक करके नहीं देना है. साथ में दो, एक एक करके मत दो. Okay, Aryan has answered. Aryan 1. What is Aryan 1? Okay, so let's check our answers. So those who answered B, C, B, it would be correct. If you answered it as B, C, B. So I hope the 20th one you all have got. E is equal to A times, so it is going to be 2 times of 4 minus 1 upon 2. So that will give you 3 volt. So I hope everyone got B. Two different loops are concentric and they lie in the same plane. Concentric का मतलब होता है common center. तो दो लूप है जिनका कॉमन सेंटर है. द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग विद टाइम. सो ये ऐसा है और ये ऐसा है. So the current in the outer loop is clockwise and it is increasing with time. That means it is an alternating current changing with time. What is the change or induced current in the inner loop? So क्या होगा जब increase हो रहा है? So what does the system try to do? It tries to decrease it. So if it is going to decrease it, that means the direction will be reverse. Will be reverse and therefore it is going to be anti-clockwise. That's why it is counterclockwise. Then according to Faraday's law of EMI, I hope everyone got this. It is the rate of change EMF induced, that is option B. So I hope you were able to do it. Can I proceed? Do you have the energy to do some more? You've done 25 questions roughly, so I'm very happy that in a span of 30 minutes roughly, you have done 25 questions. So that's not bad, right? That's super speed. Let's do some more and check. Try these, let me see. It should come like, let me see how fast you can do, you know, how fast you are. 25, 26, because घर पे तो आप करने नहीं वाले, एक लेके बैठोगे, एक पेज लेके बैठोगे. इससे अच्छा कर लो यहाँ पे, right? वसूल कर लो पूरा.
जितना हो सके। मैं तो बोल रही हूँ रोज मिलते हैं, रोज 50 क्वेश्चन करते हैं, तो हफ्ते में सोचो हमारे 7 into 50 350 क्वेश्चंस हो जाएंगे। Anyway, let's see. So the north pole of a long horizontal bar magnet is being brought closer to a vertical conducting plane along the perpendicular direction. The direction of induced current in the conducting plane will be. साथ में दो आंसर, एक एक करके मत दो, साथ में दो. Don't give me Tripti, Anand. Give me all the 4 answers. Take your time, but चारों के चारों बताओ. तुम लोग कितने डिसिप्लिन्ड हो. कुछ बैचेस जो मैं सिखा रही हूँ, एक तो वीडियो में आके बाल बना रहा था. I mean, thank God now we have more security in Zoom. He was making his hair style in front of the camera. Okay. So I have Aryan 1 and Aryan Mishra who have given the answer. Okay, I'm checking both the answers. D. Okay. A, B, C भी आ रहा है. Okay, now everyone has started, so okay, अगर मैं बोलूं कि जिसने भी लिखा है उसमें सिर्फ कोमल, योर आंसर इज करेक्ट बेटा. बाकी थोड़ा चेक करो, चारों करेक्ट नहीं है. एक और बार चेक करो जिन्होंने डाला है. आई एम वेटिंग. 25th जो है, द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट, north pole of is being brought closer to a vertical conducting plane along the perpendicular direction. The direction of the induced current in the plane will be just like how we always say, it will be anti-clockwise. Lenz's law है वो, clear. So ये D ही है, ये D ही है. So I don't know why people are getting A. Why would it be A? It's asking you the direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके आपने लाइफ में बोला है क्या? नहीं ना. इट्स आइदर क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज. तुम लोग को कुछ ऑप्शन से प्यार हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, लाइक वही फिर ऑप्शन बोल देते हो. थोड़ा ना बच्चा, थोड़ा थोड़ा क्लियर ये हो जाएगा. सो लेट्स कम टू द 26th क्वेश्चन व्हिच सेज, सो आई कैन सी दैट 26 बहुत सारे जन का करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स दिया है हमने, स्क्वायर एरिया दिया है. 6 minus 1 dB is और upon 2, तो आई थिंक everyone got 1. तो इधर कोई गुंजाइश नहीं है, सबको C मिला है. मुझे दिख रहा है कि everyone has got C. 28 में Lenz's law gives, what does it give? Lenz's law क्या बताता है आपको? It's such a clear statement. Lenz's law gives what? Lenz's law gives us, yes, it gives us the direction. So 28 is B, the direction of the induced current, right? It tells us about the direction. So it is option B. 29th question, the north pole of a bar magnet is moved swiftly downwards
through a closed coil, and then second time it is raised upward slowly. फटाक से नीचे गिराया और slowly उसको उठाया. The magnitude and direction of induced current in the two cases will be. अच्छा, जब स्विफ्टली गिराते हैं तो ऑब्वियसली आपको भी पता है क्या है, फर्स्ट केस में ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट. द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव स्विफ्टली डाउनवर्ड्स. नॉर्थ नॉर्थ क्या डायरेक्शन देता है, एंटी क्लॉकवाइज. So obviously it will be a higher value and anti-clockwise in the first case, and the induced current in the second case, जब आपने उसको slowly ऊपर उठाया तो आप उल्टा लेके आ रहे हैं, उसको उल्टा लेके आ रहे हैं, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज था वो क्लॉकवाइज होना चाहिए. इसलिए यहाँ का आंसर क्लियरली कौन सा है, डी ऑप्शन है. आई होप द लास्ट वन इज वेरी क्लियर टू यू. एक कॉइल के अंदर से बहुत स्पीड में आपने मैग्नेट को गिराया जिसका नॉर्थ फेसिंग द कॉइल था, इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और स्पीड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो ज्यादा वैल्यू रहेगा, राइट. फिर आपने उल्टा लिया, मतलब जब आप नॉर्थ को ऊपर लेके आ रहे हैं वापस, मतलब रिवर्स, तो फिर रिवर्स में डायरेक्शन तो उल्टा होगा ही, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो जो है वो क्लॉकवाइज बन जाएगा. So that's very good. You finished 30 questions roundabout. Let's start with 31, 32, and 33. Try it with patience. I want everyone to get the right answer. एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तीनों आंसर साथ में बताना है मुझे. Take your time, but answer should come correct. एक भी आंसर गलत जाना नहीं चाहिए, तब आप जीतोगे. मैंने आपको फॉर्मूलाज दे दिया है हिंट के तौर पे. अभी आंसर बताओ.
मुझे परफेक्टली करेक्ट नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने आंसर डाला है ग्रुप में, मतलब 2 आंसर्स आपके करेक्ट है, परफेक्ट नहीं मिल रहा है। रौनक, पलक, आर्यन, मुझे वो कुछ तो गड़बड़ है। नो चैतन्य, एक आंसर सही है आपका। नंदिनी 2 आंसर सही है। सबको अलग अलग क्यों आ रहा है यार? कोमल 2 आंसर सही है, एक गलत है। पहला वाला सब लोग चेक करो वैल्यूज, ये सबको पहला वाला आंसर है ना, सबको अलग अलग आ रहा है। अलग अलग कैसे आ रहा है? cos 180 क्या होता है भैया? -1 होता है ना, तो 1 माइनस ऑफ -1 2 हो जाएगा ना। चेक करने दो, क्या आप में गलती है कि क्वेश्चन में गलती है? 500 इंटू एरिया 10 to the power -1 per turn into magnetic field 2 into 10 raised to -1। ये हो जाएगा cos of 0 is 1 minus of -1, मतलब ये 2 हो जाएगा अपॉन 10 to the power -1 नहीं आएगा, 50 आएगा। वहां पे रेजिस्टर 50 है क्योंकि नीचे रेजिस्टर का है। सो दिस इज गॉन, दिस इज 10 टाइम्स, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? 4 इंटू 10 रेज टू -1 बच रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जन को, मुझे नहीं पता कि क्यों आपको, आई थिंक यू सब्सटीट्यूटेड टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने टाइम सब्सटीट्यूट किया, बिकॉज वो टाइम मिसलीडिंग है। वहां पे टाइम दिया हुआ है बट टाइम को वहां यूज ही नहीं करना है फॉर्मूला में। बराबर है, dt dt दोनों तरफ कैंसिल होता है, मैंने थोड़ी देर पहले किया था। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, प्लीज दिमाग में बिठा दो। तो चार्ज के फॉर्मूला में टाइम कैसे आएगा? अच्छा ओके पलक, ठीक है। अभी फ्लक्स वाला तो बहुत इजी है। n इज 100, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सो 5 इंटू 10 रेज टू -4। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2 और एंगल भी दे रखा है cos of 60। ये डायरेक्ट है। आई होप एवरीवन गॉट, आई कैन सी दैट एवरीवन हैज गॉट ऑप्शन ए मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। आई होप एवरीवन गॉट ए, मुझे दिख रहा है कि सबको आया है। और थर्ड वाला भी सबका सही है, सबको बी आया है, 4 कूलम। फॉर्मूला दिया है मैंने यहाँ पे। यस, ठीक है। या कैन आई मूव अहेड? सो प्लीज क्वेश्चन को फटाक से सेकेंड टाइम पढ़ के देखने का, और दिमाग में क्या रखना है आज, व्हाट्स द टेक अवे टुडे? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो चार्ज के फॉर्मूला में टाइम नहीं आएगा। ओके, 34, 35, 36 should take you lesser time. Tell me quickly. This should take you less time. 34, 35 and 36. चलो, साथ में चाहिए आंसर। तो फ्लक्स आपको पता है बा है, बट सोलेनॉइड के लिए आपको पता है कि म्यू नॉट एन आई होता है, याद है ना? तो वो यूज करना है। -7,
कितने लेयर्स है? 3 layers of 1000 turns. 3 layers of 1000 turns मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? 3 layers of 1000 turns का मतलब 3000 हो जाएगा, बराबर. नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ. याद है ऐसे करते थे इसको, बिकॉज स्मॉल n इज कैपिटल N अपॉन L into current, that is 2 amperes. Pi r square आई होप ये फॉर्मूला आपको समझा है मैंने क्या किया. ये अपना म्यू नॉट है, राइट. फिर अपना जो स्मॉल n है वो कैसे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, राइट. कैपिटल N क्या होगा? 3 layers मतलब 1000 डाला, फिर उसके ऊपर 1000 डाला, फिर उसके ऊपर 1000 डाला. 3 layers है. सो आई थिंक नाउ यू कैन डू इट, राइट. पाई और पाई, पाई का स्क्वायर इज अराउंड 9.86, तो आप उसको 10 लेके कर सकते हैं. I'm sure I've simplified it for you. You can do it now. Yeah, Komal, Ronak, yes, Pradnya, yes. I hope you're getting first wala kya hai, the induced, the direction of induced current is such that it opposes the very cause. Everyone knows this is A. इधर कोई Lenz's law है. Next wala kya hai? To induce an EMF in the coil, the magnetic flux must either increase or either decrease. This is also very clear. And in the third one, I hope after calculation comes around option B. Any doubt here? Any doubt, please ask, because that is important. कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर करे आप, कुछ रखना नहीं है बच्चा. Can I move ahead? है दम थोड़ा और करने के लिए, 50 तक पहुंचाने के लिए दम है. Let's try this. 4 questions. Take your time, but give me the right answer. मैं चाहती हूँ कि सब मुझे right answer दे. उसमें एक गलत हो जाता है फिर. तो एक चारों चारों एकदम आई वांट राइट, एकदम खतरनाक राइट चाहिए मुझे. तो थियोरी वाला पहले कर लेने का, दैट्स द ट्रिक. पहले थियोरी वाला पढ़ लेने का, थियोरी वाला कर लेने का, फिर प्रॉब्लम लेके बैठने का. 37, 38, 39 and 40.
Are you doing? I hope you're doing. Tell me for 38 and 40 first. 38 और 40 बता दो. 38 क्या है और 40 क्या है? Faraday's law is a conservation of energy. तो वो तो A ही है. 38 वाला A है, right? 40 वाला क्या है? The total charge induced in a loop when it is moved in a magnetic field depends upon. What does it depend upon? Yes, 40 is very good. It is not the rate of change, but it is the total change in the magnetic flux. It is the total change in the magnetic flux. रेट मतलब टाइम आ गया ना, आप समझ रहे, रेट मतलब टाइम आ गया. सो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ है नहीं, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ है नहीं. तो 40 को ऐसे समझना है कि रेट वर्ड आया मतलब क्या है, अपॉन dt आया, जबकि चार्ज आपको कब से बता रही हूं मैं कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. सो द टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो 40 का आंसर सी है. तो 38 ए है और 40 सी है. अभी 37 और 39 बताओ. 37 और 39 बताओ. फॉर्मूला मैंने दिया था आपको. ये 37 वाला वो सेम फॉर्मूला है जो थोड़ी देर पहले आपने किया. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. चार्ज पूछा है ना. चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, राइट. कितना दिया है अपने को? 32 माइक्रोकूलम. -6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 100. एरिया कितना है? 6 mm है. 5r². के चेंज इन फ्लक्स हमें ढूंढना है. इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, द कॉइल इज टेकन आउट. कॉइल इज टेकन आउट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले पहले जो भी था सेकंड केस में वो 0 होता है. मतलब यू कैन से बी सम मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि इन अदर वर्ड्स वी आर राइटिंग 0 माइनस बी. तो अगर यहाँ माइनस था तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन आर. रेजिस्टेंस कितना दिया है? 40. तो माइनस माइनस प्लस होके आएगा ये आंसर. 40 नहीं, 200 होगा, क्योंकि 160 का रेजिस्टेंस एमीटर का भी है ना. एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो नीचे आएगा 160 प्लस 40. सो टोटल 200 आएगा नीचे. यस आनंद, यस आई कैन सी. नाउ कैलकुलेट बी. अभी आप बी निकाल सकते, देखो बी निकाल सकते कि नहीं.
37 का आंसर चेक करो आर्यन, बाकी सब सही है शायद, बाकी सब सही है। डेसिमल जरा चेक कर लो। यस रौनक तृप्ति बराबर है 37 का आंसर चाहिए मुझे। ये 32 इंटू 264 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, नीचे 36 आएगा, 3 आएगा, और 36 3 पाई को ये ले लेते, 10⁻⁻6 ले लेते। ओके, तो देखो कितना आ रहा है। 37 में तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। चौहान, प्रज्ञा करेक्ट है और आर्यन 1 करेक्ट है, 37 करेक्ट है आपको। ये मैंने डिनोमिनेटर जो है आपका कम लिया है, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा आने वाला है, फ्रैक्शन कम लेना पड़ेगा। पावर नहीं होगा बिकॉज यहाँ मैं एक 100 भूल गई, तो ये भी -4 ही होगा डिनोमिनेटर में, ये नहीं आएगा। This will approximately come to 0.59 something. इसका मतलब this answer will match to option D. वो 100 था ना यहाँ पे, 100, वो 100 मैंने यहाँ नहीं कैरी फॉरवर्ड किया, 100, सो 100 और -6 है ना, 3 और -2, तो वो चला गया। तो आई होप 37 आपको डी मिला, 0 पॉइंट आएगा, या मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.64 आ रहा ना, विच इज एक्चुअली मैंने डिनोमिनेटर क्या लिया है, कम लिया है, 3.142 की जगह पे 3 लिया है, मतलब फ्रैक्शन मेरा ज्यादा आएगा, तो 0.6 से कम आना चाहिए मुझे, सो वो डी ऑप्शन है। 39, 39 एग्जॉस्ट हो गए कि कर रहे हो? एग्जॉस्ट नहीं होना है। नो बेटा, मैंने डिनोमिनेटर बहुत ही कम लिया है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? वो 108 को अगर हम बढ़ा के 100 पकड़ते हैं ना, तभी 0.64 आता है, समझ रहे हैं? तो मैथमेटिक्स में वो क्या हो जाएगा, 0, इफ आई टेक 64/100 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 8 यूनिट से और कम कर दिया उसको, और पहले वो 3.142 था, मैंने उसको 3 कर दिया, तो ऑब्वियसली वो 0.655 नहीं आएगा। यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे ना, 3.142 नहीं पकड़ रहे। फिर 108 का भी अगर 100 कर दिया तो वो सी कैसे आएगा? अगर डी नहीं होता तो हम सी को पकड़ते, ठीक है? कैन आई रब दिस ऑफ? कैन आई डू 39?
ओके, सो 39 में आपको अपना ईएमएफ ही ढूंढना है, वैल्यू ऑफ टी ढूंढना है। सो ईएमएफ दिया हुआ है, कितना है 0.1. सो यू नो द फॉर्मूला, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला. शुड आई राइट द फॉर्मूला? इट इज मॉड ले सकते हैं. So even if you take the negative, it's anyway going to get eliminated. This will become B2 minus B1, that is the change in the magnetic field, A upon dt. हमें टाइम ढूंढना है इस बार, हमें टाइम ढूंढना है. सो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना है 50. चेंज कितना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज रिमूव्ड करके बोला ना, इसका रिमूव्ड मतलब B2 इज 0. सो इट इज 0 माइनस ऑफ 2 into 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट इज 2 into 10 raised to minus 2 Tesla into area is 100 into 10 raised to minus 4 upon 0.1. I think this everyone must get. Yes, common. Okay. सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी कैंसिल हो रही है. 52 जा 100 है, 100 और ये -2 कैंसिल हो गया. ये -4 और 2 है तो -2 हो गया, और -2 और +1 -1 हो गया. सो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर शॉर्ट आंसर ऑफ ए ऑप्शन. यस, 39 ए है. मिला सबको? ओके, कैन आई प्रोसीड? We got a last set to go. We can finish it off. Just 15 minutes more. Is that okay? Yes. Yes, Anand. DAAC. Okay. 41 to 44. Quickly. 41 to 44. Quickly. एक एक करके नहीं देना है. पहले थियोरी क्वेश्चन कर लेते हैं. 42, 43, 44 बताओ. 42, 43 और 44 फटाक से बताओ. बिकॉज 42, 43, 44 आप बता सकते हैं. 42 का क्या रहेगा? यस, 42 एवरीवन. यस, वेरी गुड. 42 नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉड. ये तो अपने को बाय हार्ट ही हो गया. 42 क्या है? बी है. सबको बी आया? वेरी गुड. तो 42 बी है अपना, राइट? 43 लेंसेज लॉ अप्लाइज टू व्हाट? obviously it applies to electromagnetic induction, so 43 C है. 44 क्या है? If a coil of metal wire is kept stationary, okay, in a non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, तो आपको बताना है कि what will happen. सी, मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसमें रख दिया, कुछ होगा क्या? आपको क्या लग रहा है कुछ होगा? मैंने एक कॉइल लिया और उसको ऐसे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा रखा तो कुछ होगा? क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से आप बोल रहे हो कि नहीं होगा? क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है. आप समझ रहे? रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा है. विद टाइम कुछ मूव नहीं हो रहा है, मोशन कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इट्स ऑप्शन सी. आई होप इट्स क्लियर. या ओके, तो वो सी है. ठीक है, नाइदर करंट नॉर दिस. लेट्स कम टू 41. लेट्स कम टू 41. करंट क्या है? ईएमएफ अपॉन आर, राइट? एंड ईएमएफ क्या है?
E is equal to d phi by dt. तो इस बार dt भी आएगा करंट में, बिकॉज करंट ऑब्वियसली इज है. अब सब कुछ डाल के देखते हैं. 20 इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. रेजिस्टर का वैल्यू कितना दिया है? 100 ओम्स. मैग्नेटिक फील्ड का चेंज is 1000 into area is directly given to us 25 into 10 raised to minus 4 upon if the per second मतलब 1 ही हो गया. So I think this also is very easy. What will be your answer? Yes. 25 twos are 50, 500 into 10 raised to minus 4. So I think everyone must get the answer as C. C मिला सबको? ओके. इसमें पहले करो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 पहले करो. 47 और 48. 47 और 48 पहले करो, फिर 45 46 करेंगे. 47 48. So let's come to 47. 47 says that there is a moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. This is in accordance with, when we're talking about the magnitude, we are not talking about, see, induced EMF karna is Faraday's law. A moving conductor coil in a magnetic field produces an induced EMF. That is Faraday's law. The direction is given by Lenz's law. So 47 ka answer should have been D. So 47, I hope you got D. 48 is, in the diagram shown, if a bar magnet is moved along the common axis of two circular coils, ऐसे एक circular coil hai, and it is moved along the common axis, then what happens? What happens? Induce current. Current is induced only in A and not in B. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो A तो नहीं है. सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है.
सेकेंड वाला कह रहा है कि इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, विल इट बी इन द सेम डायरेक्शन? जब साउथ एक की तरफ आ रहा है, दिखाया गया है, तो इसका मतलब है दूसरे से जा रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन. दैट इटसेल्फ शुड गिव यू द आंसर इज डी. Okay, so for 48 it is D. Now what is 45? 45, very simple. हम डेरिवेटिव निकालते थे, याद है? या सो हम डेरिवेटिव निकालते थे, तो हमें E क्या मिलने वाला है? डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 6t plus 4 at t equal to 2 seconds, so it is 12 plus 4 is 16. So 16 volt is your answer. So 16 volt आपका आंसर है. Then the same formula for 46. So 46 में आपको क्या लगाना था? E इज अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो आपको बताया, E इज इक्वल टू NBA. एंगल चेंज हो रहा है, तो इट इज cos थीटा 1. जो बड़ा है, इफ यू आर टेकिंग द दिस अपॉन dt, वो माइनस अगर आप पकड़ के चल रहे तो माइनस अपने आप वो निकल जाएगा. cos ऑफ 90 क्या होता है? 0. cos ऑफ 0 क्या होता है? 1. so anyway that is going to become 1. so बाकी मॉड अगर लेते हैं, so it is 800 into 4 into 10 raised to minus 5 into 5 into 10 raised to minus 2 upon 0.1. I think this can be solved. Fatafat. No beta, it will not be B because 48 में C, अगर इसका डायरेक्शन दिया है ना मूव्ड अलोंग, तो अगर वो साउथ इसकी तरफ आ रहा है, दिस मींस नॉर्थ यहाँ से जा रहा है. एंड द डायरेक्शन ऑफ इट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आप सोचो फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो अगर आपको यहाँ साउथ दिख रहा है, तो ये साइड में आपको नॉर्थ दिखेगा, राइट? सो फ्रॉम द नॉर्थ के केस में यहाँ आपको नॉर्थ दिखेगा और यहाँ पर आपको साउथ दिखेगा. सो ऑब्जर्वर के इसमें सोचो आप ऑब्जर्वर को यहाँ रख के सोचो सतीश, तो फिर आपको समझेगा कि जब यहाँ साउथ आ रहा है तो यहाँ साउथ बन रहा है, तो इसके पीछे क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा. आपको पता है ना, कॉइल का एक साइड साउथ होता है तो पीछे का नॉर्थ होता है. तो ये आपको डिसाइड करना है कि ऑब्जर्वर किधर है. तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, देन इट विल चेंज. आई होप इट इज क्लियर. सो 46 क्या आ रहा है आपको? या 0.016 वोल्ट आया. I hope everyone got this. D आंसर आना चाहिए. ठीक है? So I think I've completed 48 questions today. I have more to come. ये लास्ट सेट करके जाते क्या? ये इट्स वेरी सिंपल, नथिंग इज देयर इन दिस. ये लास्ट तो एटलीस्ट 50 कर लिया ना. ये फटाफट बता दो. चलो 52 तक खत्म करते हैं. मेरा इंटेंशन है कि मैं पूरा कर लूं, तो आई विल बी डूइंग एवरीथिंग. हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का. अगर आपको अटका ना तो आप मुझे बताओ, तो फिर मैं कंसेप्ट पे जाती हूँ. ठीक है? 50 तो बहुत सिंपल है. द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. देखो ध्यान से देख के बताओ कि कौन सा है. वो डॉट और क्रॉस की बात कर रहे हैं. डॉट और क्रॉस की बात कर रहे हैं. विच वन इज करेक्ट? यस, वेरी गुड. तो 50 सी है.
यस 51 क्या होगा? 51 सबसे एक्यूरेट कौन सा दिख रहा है? यस वेरी गुड। 52 क्या होगा? यहाँ ना एडीज करंट का प्रिंसिपल यूज होता है क्योंकि कॉपर ट्यूब बोला ना। ओके सो 52 मैं नहीं कर रही हूँ आज क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा 52। ठीक है तो 51 तक हमने किया बिकॉज आप लोग आंसर गलत दे रहे हैं 52 के लिए। क्योंकि एडीज करंट का थोड़ा कंसेप्ट मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो आज हमने 51 तक कंप्लीट किया, याद रहेगा प्लीज लिख के रखो 51 तक ऑफ फैराडेज एंड लेंसेज लॉ। फिर हम स्टैटिक और मोशन वगैरह सब कर देंगे। तो आई होप एमसीक्यू ही सॉल्व करूँ राइट? तो आई मीन यू वांट मी टू डू एमसीक्यू ओनली? यस ओके सो आई विल कंटिन्यू डूइंग ओनली एमसीक्यूज देन। अगर कहीं पर भी जैसे हम 52 पे अटक गए फॉर एग्जांपल तो हम इसके लॉजिक के पीछे वापस जाएंगे। ठीक है? यस 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 आनंद। या ओके चलो टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय। यस पलक, जो आप बोल रहे हो वही आंसर। हाँ थैंक यू कोमल बेटा, या बाय।